بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسد بن اسید بن خلف، زما ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں۔ لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے پردوں سے گھیر دیا، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت 1 تا 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹھی میں مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ سب لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔
दरवाजे पर दस्तक दी तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और चादर ओढ़े हुए हैं। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोल उठे, अल्लाह की कसम, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन किसी ख़ास काम से तशरीफ़ लाए हैं। फिर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चारपाई पर बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरे लोगों को यहाँ से हटा दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हैरान होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो सब मेरे घर वाले हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आपके साथ जाऊँगा? जवाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तुम मेरे साथ जाओगे। ये सुनते ही मारे खुशी के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने वालिद को रोते देखा तो हैरान हुई, इसलिए कि मैं इस वक्त तक नहीं जानती थी कि इंसान खुशी की वजह से भी रो सकता है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप इन दो ऊँटनियों में से एक ले लें, मैंने इन्हें इसी सफ़र के लिए तैयार किया है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये कीमत देकर ले सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं और मेरा सब माल तो आप ही का है। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी ले ली। बाज़ रवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की कीमत दी थी। इस ऊँटनी का नाम किस्वा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आपके पास ही रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में इसकी मौत वाक़या हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर हमने इन दोनों ऊँटनियों को जल्दी जल्दी सफ़र के लिए तैयार किया। चमड़े की एक थैली में खाने पीने का सामान रख दिया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चादर फाड़कर इसके एक हिस्से से नाश्ते की थैली बांधी और दूसरे हिस्से से इन्होंने पानी का बर्तन का मुंह बंद कर दिया। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस ओढ़नी के बदले जन्नत में 2 ओढ़नियाँ देगा। ओढ़नी को फाड़ कर 2 करने के अमल की बुनियाद पर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ात अल नताकीन का लक़ब मिला, यानी 2 ओढ़नियों वाली। याद रहे कि नताक इस दुपट्टे को कहा जाता है जिसे अरब औरतें काम के दौरान कमर के गिर्द बांध लेती हैं। फिर रात के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रवाना हुए और पहाड़ सौर तक पहुँचे। सफ़र के दौरान कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलने लगते तो कभी पीछे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब में इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं इस ख्याल से परेशान हूँ कि कहीं रास्ते में कोई आपकी गात में ना बैठा हो। इस पहाड़ में एक गार था। दोनों गार के दहाने तक पहुँचे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, कसम इस ज़ात की जिसने आपको हक देकर भेजा, आप ज़रा ठहरिए, पहले मैं गार में दाखिल होऊंगा। अगर गार में कोई मोज़ी कीड़ा हुआ तो कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। चुनाचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गार में दाखिल हुए। इन्होंने गार को हाथों से टटोल कर देखना शुरू किया। जहां कोई सुराख मिलता अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़ कर इसको बंद कर देते। इस तरह इन्होंने तमाम सुराख बंद कर दिए, मगर एक सुराख रह गया
और इसी में सांप था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सुराख पर अपनी एड़ी रख दी। अल्लाह अकबर। इसके बाद अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए। इधर सांप ने अपने सुराख पर एड़ी देखी तो इस पर डंक मारने लगा। तकलीफ की शिद्दत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से आवाज़ ना निकलने दी, इसलिए कि इस वक्त अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रानों पर सर रख कर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सांप के डसने के बावजूद अपने जिस्म को ज़रा सी भी हरकत ना दी, ना आवाज़ निकली कि कहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख ना खुल जाए। अल्लाह अकबर। ताहम आंख से आंसू निकलने को वो किस तरह ना रोक सके, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे। इनके गिरने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। इन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, अबू बकर क्या हुआ? इन्होंने जवाब दिया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे सांप ने डस लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया। इससे तकलीफ और जहर का असर फौरन दूर हो गया। सुबह हुई। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर चादर नज़र न आई तो दरियाफ्त फरमाया, अबू बकर चादर कहाँ है? इन्होंने बताया, अल्लाह के रसूल, मैंने चादर फाड़ फाड़ कर इस गार के सुराख बंद किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू बकर को जन्नत में मेरा साथी बना। इसी वक्त अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ख़बर दी कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। इधर कुरैश के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इस गार के करीब आ पहुँचे। इनमें से चंद एक जल्दी से आगे बढ़कर गार में झांकने लगे। गार के दहाने पर इन्हें मकड़ी का जाला नज़र आया, साथ ही वो जंगली कबूतर नज़र आए। इस पर इनमें से एक ने कहा, इस गार में कोई नहीं है। एक रवायत में यूँ आया कि इनमें उमैया बिन खल्फ भी था। इसने कहा, इस गार के अंदर जाकर देखो। किसी ने जवाब दिया, गार के अंदर जाकर देखने की क्या ज़रूरत है? गार के मुंह पर बहुत जाले लगे हुए हैं। अगर वो अंदर जाते तो ये जाले बाकी ना रहते, ना यहाँ कबूतरों के अंडे होते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इन लोगों को गार के दहाने पर देखा तो आप रो पड़े और दबी आवाज़ में बोले, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान के लिए नहीं रोया, मैं तो इसलिए रोता हूँ कि कहीं ये लोग आपको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अबू बकर गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को सुकून बख्श दिया। इन हालात में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को प्यास महसूस हुई। इन्होंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास का जिक्र किया तो आपने अरशाद फरमाया, इस गार के दरमियान जाओ और पानी पी लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठकर गार के दरमियान में पहुँचे। वहाँ इन्हें इतना बेहतरीन पानी मिला कि शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मुश्क से ज़्यादा खुशबू वाला था। इन्होंने इसमें से पानी पिया। जब वो वापस आए, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों के निगरान फरिश्ते को हुक्म फरमाया कि इस गार के दरमियान में जन्नतुल फरदौस से एक चश्मा जारी कर दें ताकि तुम इसमें से पानी पी सको। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हुए और अर्ज़ किया, क्या अल्लाह ताला के नज़दीक मेरा इतना मुकाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हाँ, बल्कि ए अबू बकर, इससे भी ज़्यादा। कसम है इस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के पैगाम के साथ नबी बनाकर भेजा, वो शख्स जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।